ओके, होप। ठीक है। जी जी, अस्मा वो बनाया है मैंने कल ही। मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगी। ओके क्लास, सो स्टांजा नंबर 3 इट इज। कल की जो हमने स्टांजास की एक्सप्लेनेशन की थी, दे वर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग आवर फिलोसफी। It was representing hope, and the theme of the second stanza was related to hope, that how we basically build and build our emotions and feelings related to our worldly things, और कैसे हम अपने worldly things, materialistic world के पीछे we are running after, and we do not think about the world that is come that is about to come. And like sometimes our desires and the all the things that we achieve, we get them, and sometimes we do not. But if we get them, even at the cost of getting them, still, like, it is just like a bubble, and our happiness is temporary. So starting with the stanza number 3, there was a door to which I found no key. There was a veil to which I might not see. Some little talk awhile of me and thee. There was, and then no more of thee and me. So basically, अगर हम पहले मीनिंग्स देखें, सो डोर मीन्स ऑफ कोर्स एनीथिंग, अ मीडियम ऑफ लाइक एंट्रेंस, ठीक है, दरवाजा। लेकिन ये इस दरवाजे की बात नहीं करे, रियल दरवाजे की बात नहीं करे। दिस इज बेसिकली, दिस रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। टू विच आई फाउंड नो की। की मीन्स लाइक any type of basically solution. There was a veil. Veil means something that has a barrier. ठीक है, वैसे तो वेल को पर्दा कहते हैं, पर्दे को कहते हैं बेसिकली। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसका मीनिंग ले सकते हैं, समथिंग दैट हैज बैरियर्स बेसिकली। through which I might not see, some little talk a while of me and thee. Thee here represents आपके दरमियान। Me means me, मैं, और thee means आप, you। ठीक है। There was, and then no more of thee and me. सो बेसिकली क्लास, ये जो स्टांजा है, इसमें पोइट अगेन एक हिडन मिस्ट्रीज जो वर्ल्ड के हैं, ठीक है, जिनको हम समझ नहीं पाते। वी कैनॉट अंडरस्टैंड द बर्थ, we only know that human beings enter into this world. We do not understand the philosophy behind birth. We cannot understand death. We know that this is a rest reality, this is a better reality that we need to taste, that we have to taste basically. But why it has to occur? Why we have to face the death? We know, of course, that we have to, um, answerable in front of Allah, uh, in front of Him, in order to answer Him about our deeds. But what is the philosophy of the death? Why we have to face it? ये जो mysteries हैं, जो hidden truths हैं, इसके अलावा लाइक हम नहीं जानते। ठीक है। सो देयर वॉज अ डोर टू विच आई फाउंड नो की। सो इन दिस लाइन बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट दोज मिस्ट्रीज। डोर मीन दरवाजा, कि एक मिस्ट्रीज है, एक ऐसी छुपी हुई बातें हैं जिसको समझने के लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। वी नो दैट देयर इज लाइक अ डे टर्न्स इनटू अ नाइट एंड अ नाइट टर्न्स इनटू अ डे। वी नो दैट हु डज दिस, but why they have to change themselves? Why a day has to turn into night, and why a night has to turn into a day? We do not have a solution of that. Why we cannot stop them?
ठीक है। सो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द हिडन थिंग्स, ऑल द हिडन मिस्ट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड, के दीज आर द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जिनकी सॉल्यूशंस, जिनके कीज मेरे पास नहीं थे। ठीक है। देयर वॉज अ वेल थ्रू विच आई माइट नॉट सी। वेल कहते हैं पर्दे को, ठीक है, बैरियर है, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान की साइड से या इंसान की इमेजिनेशन से बहुत आगे की हैं, बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज। You people must have heard the speed of light in physics, and you people must have the knowledge about that thing. But when we hear that on the day of, like, on the specific day when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was about to meet Allah, so basically he was like this, his speed was basically more than that of the light. So now we cannot like challenge it, we cannot deny it, but there is a mystery hidden behind that purpose, and we do not know. ठीक है, आपको साइंस कुछ और कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कुछ और थी, और लाइक और रिलीजन सेज के वो जो उनकी स्पीड थी वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा थी। एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डिनाई आवर रिलीजन। सो देयर इज अ मिस्ट्री बिहाइंड दैट, जिनके हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। ठीक है। सम लिटिल टॉक अ वाइल ऑफ मी एंड दी। अब ये वाला जो सेंटेंस है क्लास, ये आप लाइक मी एंड दीप का मतलब आप बिटवीन अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, और फिर अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर गॉड भी कह सकते हैं। एक छोटी सी कन्वर्सेशन रही, कन्वर्सेशन मीन्स कि आप लोगों की जो लाइफ है इसको कन्वर्सेशन कहा गया है, कि ये जो हमारी लाइफ है वो बहुत शॉर्ट सी थी जो आपके और मेरे दरमियान रही। ठीक है, ये कन्वर्सेशन जो आपके और आपके फ्रेंड के दरमियान रही, देयर वाज, और मुझे ऐसा लगा कि वो हमेशा के लिए रहेगी। लाइफ को बेसिकली डिस्कस करें, हमें भी हमेशा लगता है ना, हम तो अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, हम कंसिडर ही नहीं करते इस चीज को। ठीक है, कि some day there would be a day when we will not be there in this world, and there would be no person who will even care about our death, about our deaths। ठीक है, हम हमें ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ कंटिन्यूड है जी, क्लासेस लेंगी मैम और हम क्लासेस सुनेंगे और पढ़ेंगे और फिर क्या क्या होगा, लाइक वी डू नॉट थिंक अबाउट दिस थिंग, और हमें ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए रहेगा। एंड देन नो मोर ऑफ दी एंड मी। लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि कुछ भी नहीं रहा मेरे मेरे और तुम आपके दरमियान, या लाइक इट इज आल्सो अ डिपिक्शन बिटवीन द रिलेशनशिप और द कनेक्शन बिटवीन बिटवीन अस एंड आवर गॉड। कि आफ्टर द डेथ ऑफ कोर्स पे वो वाला कनेक्शन तो नहीं रहता जो हमारा दुनिया में होता है, कनेक्शन थ्रू प्रेयर्स, थ्रू लाइक ईच एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टांजा। ठीक है, अब अगर आप लोग इसकी पैराफ्रेजिंग पर आते हैं, the poet says he encountered a door but could not find the key, meaning he could not unlock the mysteries of life and existence. A veil prevented him from seeing the ultimate truth beyond human understanding. There was There was only a short conversation between me and thee, man and God, or man and fellow humans, but soon that too ended. The stanza expresses the uncertainty of life and the limited nature of human knowledge. Thus, that's why when Hazrat Musa alayhi salam asked about the beauty, or you can say about the charm of Allah, so Allah replied him that you will not be able to even see the pinch, the little beauty from my side. So when he like showed his basically, you can say, mystery in the form of a light, so he was unconscious, basically he felt unconscious just because he was thinking about अल्लाह बेसिकली, कि वो क्या ही कितना ही अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो होगा अल्लाह के पास। सो ही रिप्लाइड कि मैं अगर आपको थोड़ा सा भी, अपना जरा सा भी अपनी आपको एक जिसे कहते हैं ना एक्सप्रेशन दूं, तो यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट, यू विल नॉट बी एबल टू बियर इट, एंड फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन ही फेल अनकॉन्शियस। सो कुछ इमेजिनेशंस हैं हमारी, कुछ मिस्ट्रीज हैं जो बियॉन्ड द ह्यूमंस एग्जिस्टेंस है, and we do not have to question them, we do not have to think about them, because these are the hidden mysteries। ठीक है, and we cannot question them, rather we cannot deny them as well। ठीक है। सो poetic devices class metaphor used to हमें डोर, मिस्ट्री ऑफ लाइफ। डोर का वर्ड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डोर का वर्ड इट इज नॉट रिलेटेड टू आवर डेली डोर, डेली लाइफ डोर, दरवाजा। इट बेसिकली रिलेट्स टू द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ।
मिस्ट्रीज इन अ ग्लास, लाइक यू पीपल मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग इन योर रियल लाइफ एज वेल, कि एक बंदा होता है बहुत अच्छा होता है, उसके साथ हमारी फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कुछ बेसिकली नेबर्स होते हैं, सिबलिंग्स इवन होते हैं, हम कंसिडर ही नहीं करते कि ये इतना अच्छा बंदा है, इसको तो कभी लाइक इसको तो कुछ बुरा इसके साथ होना ही नहीं चाहिए। और हम देख रहे होते हैं कि वही फेल हो रहा है, तो फेल होता हो रहा होता है इन डिफरेंट थिंग्स। फेल डजेंट मीन कि एग्जाम्स में, इन ऑर्डर टू अचीव डिफरेंट थिंग्स, डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही होती हैं उसको, और हम उसको क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई इस बंदे के साथ हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी वी डू नॉट क्वेश्चन और अल्लाह, बेसिकली एक हिडन मिस्ट्रीज है, हमें नहीं पता कि क्यों हो रहा होता है उसके साथ ऐसा। तो बेसिकली दैट पॉइंट इज बीइंग, दैट एस्पेक्ट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस स्टांजा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सिंबलिज्म की, डिवाइन नॉलेज, मी एंड दी। ये की का जो वर्ड यूज हुआ है, ये सिंबलिज्म यूज हुआ है कि कुछ मिस्ट्रीज हैं जिनका जिनका हमारे पास उनकी उनकी चाबी या उनकी की हमारे पास नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसको जानने के लिए। अभी आप लोग कभी जान सकते हैं कि कोई, आप देखते हैं कि आपके सिबलिंग्स के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस की को या इस प्रॉब्लम को? यू डू नॉट हैव द की टू दैट प्रॉब्लम। तो डिवाइन नॉलेज के जो नॉलेज अल्लाह के पास है वो हमारे पास नहीं है, तो वो बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है। रेपिटेशन, आप लोग देख सकते हैं कि स्टांजा में रिपीटिशन भी हुई है। ठीक है, दियर वास की जो रिपीटिशन है ना वो यूज हो रही है फर्स्ट लाइन में भी, सेकंड में भी, और फोर्थ में भी। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल बन जाएगी रेपिटेशन की। इमेजरी ऑफ कोर्स हर स्टांजा में यूज हुई होती हैं, जिसमें डोर आपका विजुअल इमेजरी की एग्जाम्पल है, की है, वेल है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी इमेजरीज की। एंड द लास्ट वन जो पोएटिक डिवाइस आपके पास यूज हुआ है, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्लास यूज हुआ है कनेक्शन बिटवीन, ये आप लोग मी एंड डी के मीनिंग्स में भी दे सकते हैं, बेसिकली अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर गॉड। ठीक है, सो ये आपके पास एक कंट्रास्ट है, क्योंकि जो कनेक्शन था वो अभी नहीं रहा। सो बेसिकली ये कंट्रास्ट की यूसेज है। देखिए वो कह रहे हैं कंट्रास्ट मीन्स के लाइक ऑपोजिट थिंग्स। पहले वो कह रहे हैं कि वो एक जो स्मॉल टॉक थी, जो कन्वर्सेशन थी मेरे और आपके दरमियान, नाउ ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड गॉड, वो नहीं रही। सो पहले थी और अब नहीं रही। सो ये आपके पास द यूसेज ऑफ कंट्रास्ट है। नहीं रहना का मतलब है कि पहले वी वर लाइक लिविंग, वी वर अलाइव, लेकिन अब हमारी डेथ हो गई है, तो हम हमारी बातचीत नहीं हो रही। ठीक है, क्लास मूविंग टूवर्ड्स द स्टांजा नंबर 4। The moving finger writes, and having writ, moves on, nor all thy piety nor wit shall your it beg to cancel half a line, nor all thy tears wash out a word of it. So basically class, ये जो स्टांजा है ना, ये आपके जो फेट है, जिस तरह वो काम करता है, ठीक है, डिस्टिनी जो है वो आपकी, कि एवरीथिंग इज प्री रिटन एंड प्री डिटर्मिन्ड, उसको बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑल दो वी हैव अनदर बिलीफ इन आवर रिलीजन, जो मैं आपको कुछ देर में बताने जा रही हूँ, बट इस स्टांजा में क्योंकि मैं स्टांजा को पढ़ रही थी, तो लाइक मुझे भी फील हुआ कि लाइक देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन द स्टांजा, बट ऑफ कोर्स हिज रिलीजन वुड बी समथिंग एल्स, बट वी बिलीव इन आवर ओन। वो कहते हैं द मूविंग फिंगर राइट्स, कि जो डेस्टिनी है ना, मूविंग फिंगर का मतलब ये नहीं है कि कोई मूविंग फिंगर्स, इट रिप्रेजेंट्स, ये सिनेक्डिकी भी यूज हुई है। ठीक है, सिनेक्डिकी के मतलब ये है कि आप छोटे से पार्ट को दूसरे सारे पार्ट में इंक्लूड करते हैं, कि जो आपका कातिब तकदीर है, ठीक है, लिखने वाला है जो, ठीक है, वो लिखता जाता है। एंड हैविंग रेड, और वो जब लिख लेता है, मूव्स ऑन, वो लिखता जाता है, ठीक है, और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन मूव ऑन होता है, और वो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट पार्ट्स और आपके लाइफ के वो लिखता जाता है और मूव कर रहा होता है, ठीक है, लिखने में।
नॉर ऐसा नहीं हो सकता, ऑल दाई, ऑल का मतलब है कि सारा कुछ, दाई मीन्स आपका, पाइटी, पाइटी मीन्स क्लास एफर्ट्स, आपकी हार्ड वर्क, ठीक है, आपकी बेसिकली जो हार्ड वर्क है प्रेयर्स में, ठीक है, रिलीजियस डिवोशन। ना तो जब वो एक दफा लिख लेते हैं ना कोई चीज, तो ना तो आपकी कोई प्रेयर्स, कोई भी आप चाहे कितने ही किसी स्पिरिचुअली कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना है, नहीं है, वो अगर एक दफा लिख दी गई है तो वो आपके प्रेयर्स भी उसको रिमूव नहीं कर सकते। नॉर वेट, वेट मीन्स अक्लमंदी, ठीक है, कि आपके पास आप कितनी ही होशियार क्यों नहीं है, आप कितनी ही अक्लमंद क्यों नहीं है, आप कितने ही क्यों, कितनी ही विजडम क्यों नहीं रखते हैं, जब वो एक दफा कोई चीज कातिब तकदीर या डेस्टिनी अपने पेज पर कोई कोई चीज मेंशन कर देता है, तो ना तो आपकी एफर्ट्स उनको रिमूव कर सकती है, ना ही इन सिंपल वर्ड्स वो कह रहे हैं कि ना ही आपकी दुआएं उनको रिमूव कर सकती हैं, ठीक है। शेल योर इट बैक टू कैंसल हाफ अ लाइन, ल्योर मीन्स किसी को परसुएड करना कि प्लीज मेरा काम कर दें, प्लीज मेरा काम कर दें, ठीक है, कि किसी को बेसिकली उकसाना, ठीक है, बट इन अ वेरी हम्बल वे। तो वो कहते हैं कि आप उसको परसुएड नहीं कर सकते, डेस्टिनी जब वो एक दफा लिख लेते हैं तो आप उसको फिर परसुएड नहीं कर सकते, इवन टू रिमूव हाफ अ लाइन, कि आपकी लाइफ में जो लिख लिया गया है उसमें से हाफ अ लाइन के लिए भी उसको परसुएड आप नहीं कर सकते कि ये मेरा रिमूव कर दें, ये वाला पार्ट मेरी लाइफ से रिमूव कर दें। नॉर ऑल दाई टीयर्स, दाई मीन्स तुम्हारे या आप, और ना ही वॉश आउट अ वर्ड ऑफ इट, और बेशक फिर आप जितना ही क्यों, कितना ही क्यों ना रोएं, ठीक है, कितने ही टीयर्स आप क्यों ही, कितने ही वॉश आउट ना करें, तो आपके रोने का, आपके हार्ड वर्क का, आपके विजडम्स का, आपके इंटेलिजेंस का, आपके प्रेयर्स का, आपके स्पिरिचुअल अटैचमेंट का कोई भी जो है ना वो फायदा नहीं है जब वो एक दफा चीज लिख लेता है। But class, I basically did not agree to the theme of this stanza. Okay, basically we have a belief that no matter what is written over there, uh, your prayers can always work. They always turn the tables. ठीक है, लेकिन यहाँ जो है वो पोएट बेसिकली उनका यही आइडिया है कि when once it is written you cannot remove anything. So there was a dialogue between two speakers. A small dialogue basically, which I would be like to narrate it in front of you. So there were basically two people. So उनके एक पर्सन के पास एक डायरी टाइप थी, ठीक है, एंड दे वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ डेस्टिनी। तो सारे पेजेस पे हर चीज़ लिखी हुई थी कि जी इस पेज पर ना ये पेज पे जो लिखा हुआ है, इस दिन इसकी लाइफ में ये होगा, ठीक है, इस दिन इसकी लाइफ में ये होगा, नेक्स्ट पेज पे कुछ और लिखा हुआ था, एक पेज बिल्कुल ब्लैंक था, बिल्कुल खाली था। तो दूसरे पर्सन ने पूछा कि भाई ये वाला जो पेज है, वाई इट इज वैकेंट, वाई इट इज एम्प्टी। तो फर्स्ट पर्सन ने आंसर्ड हिम और हर कि इसलिए खाली है क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपको वही सब कुछ मिले जिसके लिए आप दुआ करें, ठीक है। सो आवर बिलीफ इज द सेम कि लाइक आवर प्रेयर्स कैन ऑलवेज वर्क, बट इन दिस स्टांजा क्वाइट इज गिविंग अस द थीम दैट वंस इट इज रिटन यू कैन नॉट रिमूव इट, ठीक है जी। Going to the towards the explanation, the moving finger of fate writes the story of human life. Once written, it moves forward and cannot be stopped or reversed. Neither pious devotion nor human wisdom can change even a tiny part of, किधर गया tiny part, what has been done. Not even sorrow or regret can erase the past. The stanza emphasizes that fate is final and the past cannot be undone. Of course, fate is final and past cannot be undone, but our prayers can always, can change our fate. But according to this stanza, it says that it cannot. ठीक है, so class personification. Yes, he was a Muslim, but ऐसा नहीं है कि उसने जो वर्ड्स लिख लिए हैं वी शुड बिलीव हिम, वी शुड बिलीव इट कंटेक्चुअली। आप स्टांजा में ऑफ कोर्स यही लिखेंगे, बट रिलीजियसली इट इज नॉट आवर बिलीफ, ठीक है। अगर ऐसा होता फिर तो लाइक वो कहते हैं ना कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट, कि हर बुजुर्ग का जो है ना वो एक पास्ट होता है, जो आपका पियस पास्ट होता है, पियस ओल्डर पर्सन होता है।
एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ठीक है, और हर ऐसा पर्सन जो सिनर है, जो बहुत ज्यादा उसने गुनाह किए हुए, उसका भी फ्यूचर है, until and unless you do not pray। ओके क्लास, तो पर्सनिफिकेशन। जी, पर्सनिफिकेशन जरा आप लोग बताएं मुझे। एक्सप्लेनेशन बहुत हो गई है मेरी तरफ से, आप लोग बताएं कि हाउ वी कैन से दैट पर्सनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड। मूविंग फिंगर राइट्स। सो क्लास, इसमें आप लोगों ने टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है अभी, तो इसमें फर्स्ट जो सेकंड स्टांज है, मूविंग फिंगर्स राइट में, आप लोग सिनेक्डिकी भी इसमें ऐड कर लें। ऑल्दो आई हैव नॉट मेंशन इट ओवर हियर, बट सिनेक्डिकी भी है, क्योंकि ये आपके फेट को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक पूरी एक होल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेकेंडली, व्हाई इट इज कॉल्ड इज पर्सनिफिकेशन, बिकॉज ये कहा किसको किया है, फेट को किया है। तो फेट इज समथिंग दैट कैन नॉट राइट, ओनली ह्यूमन बींग्स कैन राइट। तो पर्सनिफिकेशन। ठीक है, मेटाफर बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, मेटाफर लाइफ है, लाइफ के लिए बुक। ठीक है, डेस्टिनी, रिटन लाइंस, जो यहाँ आपके पास वर्ड्स है ना, लेट अस गो टूवर्ड्स आवर स्टांजा। रिटन वर्ड्स, वर्ड ऑफ इट। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ को बेसिकली कंपेयर किया गया है, मेटाफर है। सिंबलिज्म भी है क्लास, क्योंकि मूविंग फिंगर जो है वो फेट को सिंबलाइज करना है, कर रहा है। ठीक है, रेड, रेड मीन्स यहाँ जो है ना, वैसे तो स्टांजा में मतलब है कि वो एक दफा जो लिख चुका है वो लिख चुका है। ठीक है, रिटन से ये वर्ड निकला है, बट क्या लिख चुका है, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड एंड बैड डीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये रेड उसको बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, लाइन वर्ड, जो वर्ड्स हैं वो इवेंट्स ऑफ लाइफ को सिंबलाइज कर रहे हैं, पैटर्न्स ऑफ लाइफ। एलिटरेशन, राइट्स एंड रेड। तो ये क्लास आपके पास एलिटरेशन की एग्जांपल है। आपको पता है कि इसमें डब्ल्यू की आवाज जो साउंड है ना, बेसिकली वो साइलेंट है, तो इट बिकम्स द एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। लेकिन ये जो आप लास्ट लाइन देखेंगे, तो उसमें दाई एंड टीयर्स, ये एग्जांपल नहीं हो सकती आपकी एलिटरेशन की, बिकॉज वन इज गिविंग यू द साउंड ऑफ दाई एंड द अदर वन इज गिविंग यू द साउंड ऑफ थाई, था। ठीक है, टीयर्स, ठा साउंड समवेयर। और इसके साथ साथ जो सेकंड थर्ड लाइन में लियोर एंड लाइन है, ये बेसिकली अलिटरेशन की एग्जांपल हो जाएगी, बोथ आर गिविंग यू द साउंड ऑफ लॉ। समझ आ रही है क्लास आप लोगों को? दे आर सेम, दे आर सेम। जी अरीबा, अरीबा आप मुझे बताएं कि पर्सनिफिकेशन कैसे यूज हुआ है इस स्टांजा में। मुबशरा, आप जरा मुझे लियोर का मतलब बताएं। तलहा क्लास में। Abdullah, would you tell me that how synecdoche has been used in this stanza? Okay, Ariba. Hmm? Okay. So you people leave the class when I start asking the questions? Okay, class, but it is very important point. You need to understand it. The last stanza for today. Yet, that spring should vanish with the rose. That youth's sweet scented manuscript should close. The nightingale that in the branches sang. Ah, whence and whither flown again, who knows? So in this stanza, basically the short crux of the stanza is that the poet is basically talking about the finality or the end or the conclusion of the life. Yet, लेकिन फिर भी लास्ट stanza में वो सारा कुछ कह के, लेकिन फिर भी that spring should vanish with the rose, वो
स्प्रिंग की बात करें कि स्प्रिंग जो है वेदर सीजन है वो खत्म हो जाता है। वेनिश मीन्स डिसअपियर, खत्म हो जाना। विद द रोज, एक फूल होगा, एक गुलाब होगा, एक रोज फ्लावर होगा और उसके साथ वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग सीजन, यू पीपल नो दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स एंड कलरफुल flowers in the spring season, and as soon as it ends, so we also get the conclusion or the ending of the greenery and flowers as well. That huge sweet scented manuscript should close. यूथ स्वीट सेंटेड, स्वीट सेंटेड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे मेमोरीज को। ठीक है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एनर्जी व्हेन ही और शी इज इन हिज इन हिज यंग एज। तो वो स्वीट सेंटेड का मतलब ही यही ले रहे हैं कि वो जो पूरी एक मेमोरीज हैं, जो एनर्जी है, ठीक है, वो बुक, मैन्युस्क्रिप्ट बुक शुड क्लोज, वो खत्म हो जाती है और खत्म होती है। द नाइटिंगेल दैट इन द ब्रांचेस सिंग, वो ना बर्ड्स की बात करें कि वो जो नेचर में नेचर की बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं एंड दे हैव द वेरी स्वीट वॉइस। ठीक है, और बेसिकली वो किसी भी ब्रांच पे बैठ के गाना गाते हैं। वेंस, वेंस मीन्स कब, एंड विदर, विदर मीन्स कहाँ। फ्लोन अगेन, वो एक दरख्त से या एक ब्रांच से कहीं और जाती हैं। कहाँ उड़ती हैं वो, एक एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं। हु नोस, किसको पता है। ठीक है, so whenever birds are flying surrounding you, we know the movement of the birds, that where they are going, but as soon as they are away from our sight, so we do not know. But basically this stanza is talking about the conclusion, about the ending. Okay, basically we have different seasons. Seasons means different parts of our life, different seasons we see during our life, but every season has an end and it ends with different different, and disappear with their aspects. For example, autumn always basically disappears with its dryness. Spring always disappears while leaving colorful flowers. ठीक है? The nightingale, the sound, the voice of the nightingale is very sweet, but it doesn't remain forever. And we do not know कि वो स्प्रिंग सीजन कहाँ चला जाता है, वो हमारी जो मेमोरीज होती हैं यूथ की, वो वहाँ कहाँ चली जाती हैं, कहाँ वो गुम हो जाती हैं। ठीक है, we do not know about this thing. So basically this concludes the conclusion of our life as well. The poet mourns the shortness of life in beauty, just as spring ends with roses and fades, so too does youth pass away. Life, like a sweet manuscript, must close, and it always closes. It always closes. ठीक है, no matter how much we run away from death, basically from the book of the death, from the dictionary of the death, it always runs after us. It always chases us. The nightingale, once singing joyfully, has flown away, and no one knows its origin or destination. Just as the journey of the soul is mysterious after death. We know that we have basically, we have, you know, the we will be getting the reward of our good deeds and bad deeds, that we know, but we do not know that like where does our soul go. ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट इट गोज समवेयर, बट वी डू नॉट नो कि वो सोल उसके बाद क्या करती है। ठीक है, कितने दिन बाद जो है वो कहीं लाइक इट वेक्स अप एंड ऑल दीज थिंग्स वी डू नॉट नो। दीज थिंग्स आर मिस्टीरियस बेसिकली। सो दिस वाज अबाउट द लास्ट आंसर। जल्दी से हम मैम कल का रिकॉर्ड ले, ठीक है, ठीक है। मेटाफर प्लस मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली मीन्स अ बुक। यूथ मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है कि लाइफ एज अ बुक। डिफरेंट फेजेस होते हैं ना हमारे, तो हमारी लाइफ भी एक बुक की तरह है। वी हैव देन फर्स्ट वी आर कंसिडर्ड टू बी अ बेबी, देन वी एंटर इनटू आवर चाइल्डहुड, then we enter into some other age, and then we enter into some other age. So basically we are having different phases like different pages of a book. ठीक है, the next one is symbolism. Symbolism किसके लिए यूज हुआ है? रोज, ऑफ कोर्स रोज तो ब्यूटी को ही सिंबलाइज करता है। नाइटिंगेल, नाइटिंगेल सोल को रिप्रेजेंट करता है। सोल को इन द सेंस रिप्रेजेंट करता है कि आप जो नाइटिंगेल एज अ सोल रिप्रेजेंट किया गया है कि सोल आपकी एक एक फेज में इस दुनिया में होती है। ठीक है, देन व्हेन वी डाई आवर सोल इज आल्सो डिसअपियर्ड, गॉन डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सो इट इज लाइक अ नाइटिंगेल। For a moment, it is in this world,
एंड फॉर अ मोमेंट इट फ्लाइज अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो एक सिंबलिज्म यूज टू हमारे सोल के लिए। ठीक है, स्प्रिंग यूथ के लिए सिंबलाइज कर रहा है कि यूथ भी खत्म हो जाती हैं और अपने मेमोरीज जो हैं, फ्लावर्स जो हैं, वो हमारी माइंड में रह जाते हैं। इमेजरीज क्लास यूज टू भी हैं, सारी विजुअल इमेजरीज हैं। रोज की पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हुई होगी अभी, नाइटिंगेल की पिक्चर आप लोगों के माइंड में क्रिएट हुई होगी। ठीक है, अलिटरेशन स्वीट सेंटेड, वेंस का मतलब होता है कब, वेदर का मतलब होता है कहाँ। सो दे आर आल्सो द बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ अलिटरेशन। एंड दिस टोन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पोएटिक डिवाइस, बट यू शुड नो कि इसका जो टोन है वो रिग्रेटफुल है। ठीक है, it basically the poet is regretting about all the phases of life. I hope class this poem is cleared. Any question? ठीक है ma'am, and what about others? This is the new poem class and also one of the important poem, and I tried my best to make you people understand about the theme, about the conclusion of each and every stanza. ठीक है, यस, ठीक है, मैं भेज देती हूँ अब्दुल। मैंने अपलोड कर दी है बस लिंक्स। थैंक यू मैम। Okay, class, you people can leave for prayer. Take care and Allah Hafiz.